In our last lecture, I explained you the classification of the accounts where I explained you this chart and I also gave you certain additional example for personal account, that is a natural personal, artificial personal, representative personal account, and impersonal account may real account and nominal accounts. Okay. Now I would like to explain further. Personal account means what is given to you over here. It is explained very properly in your book. So let us discuss that. This account represents a person and a group of persons with whom business deals. These accounts are classified into थ्री कैटेगरी. जैसे हमने पहले देखा है ऑलरेडी, मतलब जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे आप, मैं, ओके. So accounts relating to individual human being. Okay, for example, Rajesh account, Sumit account, Sushma account, Vaibhav account, Ninad account. Okay, so like this, that is actually natural person. Then artificial personal account means artificial person means includes accounts of organizations, associations which are created by law. Okay. Examples are Bank of Maharashtra, State Bank of India, ABC and Company Limited, Tata Company, Bata Company, Wipro Company, Recreation Club, हाउसिंग सोसाइटीज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, उसको भी नाम होते हैं ना, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. Thereafter, representative personal account. The account, okay, represents a certain person or a group of person in business dealings. Accounts relating to outstanding and prepaid items are called as a representative personal account. So they are actually showing the group of the particular person. Outstanding expenses which are payable to the group of people. For example, आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है, मैं सैलरीज आर पेएबल टू पीपल, 4 5 जितने भी आपके पास काम करते हैं उनको देना है. या तो प्रीपेड, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, दैट इज पेएबल टू इंश्योरेंस कंपनी. ओके, पेड टू इंश्योरेंस कंपनी इन एडवांस. प्रीपेड का मतलब एडवांस होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब पेएबल होता है. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एग्जाम्पल दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड वेजेस, ऑलरेडी देखा है हमने ये, बट जस्ट एक्चुअली आई एम गिविंग यू some detailed explanation for this. Then impersonal accounts are classified into following two categories. Real accounts. This account represents assets and properties owned by the business. And following are the types of real account. Tangible real. We can see, we can touch. Okay, that is tangible real. Tangible real account means assets and properties which can be seen, touched and felt. That is a machinery, motor car, stock of goods, furniture, motor vehicle. Okay, like this. Intangible real account. Intangible real account means assets which cannot be seen or touched or felt, but they can be measured in terms of money. Examples are goodwill. I told you many times that goodwill is an intangible asset. Goodwill, then patents, trademarks, copyrights, etc. All these are called as intangible real assets. But these are our assets. देखो, अगर आपका बिजनेस का रेपुटेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके पास कस्टमर ज़्यादा आने वाला है. ओके, टेक द एग्जाम्पल ऑफ चितड़े बंधु मिठाई वाले और प्रदीप स्वीट मार्ट्स इन आवर एरिया. Okay, like this, Gokul Sweets in our area, or you take the example of any companies like a Honda company, Hyundai company. So they are having their name and reputation, which is their asset. Nominal accounts, account of expenses and losses, incomes and gains are called as a nominal accounts. Examples are wages, stationery, salary, depreciation, commission received, discount received, etc. Okay. Now, I already explained you with the help of this particular chart. फिर भी मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपको पढ़ के एक वापस रिफ्रेश कर दिया, ऐसा मान के चलो आप. ओके, अभी हमको देखना है ये डेबिट क्रेडिट. यहाँ पे डेबिट क्या बताया है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज अ डेबिट साइड, डी आर, डेबिट साइड. एक्चुअली डी आर का वैसे देखा जाए तो लॉन्ग फॉर्म है डेबिट रिकॉर्डेड. आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट दिस समवेयर एल्स, या तो यहीं पे लिखो आप डी आर लॉन्ग फॉर्म. डेबिट नहीं है उसका लॉन्ग फॉर्म, उसका लॉन्ग फॉर्म है डेबिट
recorded. D for debit, R for recorded. And credit, right hand side of an account is called as a credit side. That is a credit side, debit side, credit side. So CR stands for credit recorded, credit recorded. Now golden rules are given to you for the debit and credit. This is the traditional approach. But do you know that these rules are followed universally, okay, year after year? So golden rules of the debit and credit for different accounts. I mean to say personal account, real account, nominal accounts का रूल क्या दिया है वो हमको देखना है. पर्सनल अकाउंट, द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अभी ये रूल आपको लाइफ टाइम याद करना है. यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस रूल्स लाइफ टाइम. ओके, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू पेड ₹5,000 टू श्याम. आपने 5,000 श्याम को दिया है. नाउ श्याम इज अ नेम, so he is a personal account. Sham is a receiver. We are giving, that means he is a receiver. According to this rule, debit the receiver. तो श्याम को क्या मिलना चाहिए था? डेबिट मिलना चाहिए था. और एक एग्जाम्पल बताता हूँ. ओके, we are getting the money from संगीता. ओके, संगीताकडून आपल्याला पैसे मिळाले. पैसे आपल्याला मिळाले. ओके, बट दिले कोणी? हु इज गिव्हर? संगीता. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्रेडिट द गिवर. सो संगीता's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अगर रिसीवर है तो अकाउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट. और गिवर है तो अकाउंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट. ओके, दैट इज अ सिंपल. ओके, दिस इज गिवन अबाउट द पर्सनल अकाउंट. दिस इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. नाउ रियल अकाउंट. ओके, the rule is debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. एक रिदम के साथ आप बोलोगे तो ये ध्यान में रहेगा. ओके, इसका भी एग्जांपल देता हूँ आपको. चलो, अभी मैंने एग्जांपल बोला था. ये रियल अकाउंट में आता क्या क्या है? कैश, ऑल असेट्स रादर. कैश, मशीनरी, फर्नीचर, ओके, देन मोटर व्हीकल, स्टॉक ऑफ गुड्स. All these are your assets and properties. Even goodwill, patents, copyright, trademark, all these are assets. So they are coming in this category. फिर रूल क्या है इसके लिए? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अभी का एग्जांपल दिया था ना मैंने, वो देखते हैं. चलो, मतलब अभी का एग्जांपल है ये दोनों अकाउंट से रिलेटेड है. देखो, कॅश पेड टू श्याम. श्यामला आपण काय दिलं? कॅश दिली ना. कॅश पेड टू श्याम. ओके, अब यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं? वन इज अ श्याम अकाउंट विच इज अ पर्सनल अकाउंट विच इज द रिसीवर एंड डेबिटेड. ओके, दिस इज अ 4 finger plan like this. ओके, श्याम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ओके, रिसीवर, अकॉर्डिंगली डेबिट द रिसीवर. अब दूसरा अकाउंट कौन सा था? कैश. ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था. तो मैं रियल अकाउंट में ये क्यों बता रहा हूँ? सुनो मेरी बात. हमने शाम को क्या दिया? कैश अकाउंट, रियल अकाउंट. ओके, रियल अकाउंट है वो. गोज आउट, हमने दिया तो गोज आउट ना, गया, गोज आउट. अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ पे देखो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कि भाई शाम को डेबिट करना चाहिए और ये कैश को क्रेडिट करना चाहिए. मैंने और एक एग्जांपल दिया था. वी आर गेटिंग द कैश फ्रॉम संगीता. संगीताकडून पैसे आले. ओके, संगीता अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, शी इज गिवर ऑफ द कैश. वो हमको पैसा दे रही है ना. क्रेडिट द गिवर. अकॉर्डिंगली संगीता's अकाउंट इज क्रेडिटेड. मतलब आपको इस तरह से पहले फाइंड आउट करना है कौन से अकाउंट है, वो टाइप क्या है और फिर उसका एस्पेक्ट क्या है. ओके, जैसे संगीता इज गिवर तो उसका अकाउंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट. अब यहाँ पे देखते हैं.
दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कम्स इन, अभी पैसा हमारे पास आ रहा है, कम्स इन, देन एज पर रूल डेबिटेड, डेबिट what comes in. So in this way these rules are applicable. Now let us see the rule of nominal account. Nominal account के rule देखते हैं. Debit all expenses and losses. You say like this: debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Expenses and losses means salaries paid, wages paid, stationery purchased. Okay, so all these are examples of expenses and losses. And incomes, commission received, rent received. Okay, we are selling the goods, sales are done. Okay, purchases are coming as expenses, but sales is our income. So credit all incomes and gains. It is a rule. अब मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ which is related with the real account and nominal account. You can see the arrow. एक जो कर्सर है ना, मैं पर्पजली यूज करता हूँ आपको हाईलाइट करने के लिए. ओके ओके, मान के चलो नाउ यू आर पेइंग फॉर सैलरी. ओके, सैलरी का आपने पेमेंट कर दिया. सॅलरी का आप पेमेंट कैसे करोगे? ऑब्वियसली कॅश में करोगे. लोकांना तुम्ही सॅलरी कशी देता? कॅश मध्ये देता ना. का असं म्हणता ये तुला सॅलरी देतो, असं नाही करत ना आपण. वी आर गिविंग इन कॅश ओनली. नाउ हियर देर आर टू अकाउंट्स. एक है सैलरी जो है हमारा एक्सपेंसेस, दूसरा है कैश जो रियल अकाउंट में आता है. ओके, तो अभी बात कैसे करेंगे? सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, expenses and losses, debited. Why debited? Look at the rule. Debit all expenses and losses. Okay. और फिर कैश के बारे में बात करते हैं. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट गोज आउट, क्योंकि हमने सैलरी दिया ना, तो गोज आउट, credited. Why credited? Credit what goes out. So in this way effectively you can use the rule. We are going to discuss the transactions like this. This is called as a transaction. मैं आपको और एक ट्रांजेक्शन बताता हूँ. अभी इनकम और गेन का बताता हूँ. कमीशन रिसीव्ड. ओके, अब किसने दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इन कैश ट्रांजेक्शन द नेम ऑफ पर्सन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हम उसकी पूरी कुंडली लिखेंगे ना. आपका एड्रेस बताओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बता दो, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में होगा. लेकिन जहाँ पे कैश ट्रान्झॅक्शन आहे, रोकडा आहे, रोखीचा व्यवहार आहे, तिथे आपण लोकांची नावं लिहून घेतो का? कशाला पाहिजे आपल्याला लोकांची नावं? हां, तर तुम्हाला कमिशन मिळालं, यू आर गेटिंग कमिशन नाव. ओके, कमिशन मिळालं म्हणजे काय मिळालं? कॅश मिळाली ना. कॅश म्हणजे सेकंड अकाउंट विच इज हिडन इन दिस. सो वी कॅन से लाईक दिस: वन इज अ कैश अकाउंट, अदर इज अ कमिशन अकाउंट. कैश अकाउंट, कमीशन. लिसन टू बी केयरफुली. कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है. तो उस हिसाब से कैसे बोलना चाहिए? 4 फिंगर प्लान. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कम्स इन, कमीशन मिल गया, कम्स इन, डेबिट एज पर रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन. नाउ कमीशन अकाउंट. कमीशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. It is income or gain. Commission account, nominal account, income or gain. So as per rule, it should be credited. Look at this: credit all incomes and gains. So while giving the example or the explanation for these golden rules of debit and credit, I gave you examples like this. Okay, हे मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिली, पण याचे ॲस्पेक्ट कसे असतात हे या इलस्ट्रेशनमध्ये आपल्याला दिसेल ना. From the foreign transactions, find out 2 aspects, 2 accounts and classify the accounts. मतलब हमको 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. ओके, commenced business with cash. What is the cash? 20,000 रुपीज. एंड commenced business मतलब आपने बिजनेस चालू किया. ओके, with rupees 20,000. You are
स्टार्टिंग विद द बिजनेस विथ कैश 20,000, तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से है? यू नीड टू फाइंड आउट टू अकाउंट्स. नंबर वन इज अ कैश, वो तो आपके सामने है. दूसरा कौन सा है? कैपिटल. ओके, सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो सेकंड अकाउंट इज योर कैपिटल अकाउंट. ओके, तो पहले ट्रांजैक्शन में हमको पता चला कि एक है कैश, दूसरा है कैपिटल. यहाँ पे आपके पास बुक है, तो आप बुक के ऊपर यहाँ पे लिखो ओके, वन इज अ कैश अकाउंट, इसको अंडरलाइन करो, उसके सामने लिखो कैपिटल अकाउंट. सेकंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय. ओके, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम बिल्कुल नहीं आता. नाउ व्हाट वी हैव डन, परचेज गुड्स, so one is a purchases account, not goods account, purchases account. Some teachers say goods account, which is not correct. Actually it is purchases account. And second is a अजय account, purchase account and अजय account. तो आपको purchase को अंडरलाइन करना है, अजय को भी अंडरलाइन करके रखना है. नंबर 3, कैश सेल्स. यहाँ पे दोनों अकाउंट आपके सामने है, एक कैश है, दूसरा सेल्स अकाउंट है. तो कैश को अंडरलाइन करो, सेल्स को अंडरलाइन करो. कैश सेल्स का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश. रोख बिक्री, रोख बिक्री. ओके, मतलब आपने कैश लिया, माल दिया, कैश लिया, माल दिया, लाइक दिस. रिसीव्ड कमीशन, ये अभी अभी एग्जांपल बताया था. एक कमीशन को अंडरलाइन करो और दूसरा अकाउंट यहाँ पे हिडन है, उसका नाम लिखो कैश. कमिशन मिल गया मतलब क्या होता है? कॅश मिल गया. कमिशन मिळालं म्हणजे काय मिळालं तुम्हाला? कॅश मिळाली ना, राईट. सो यू आर गेटिंग कमिशन विच इज नथिंग बट कॅश. नाव पेड रेंट, रेंट पेमेंट केलं म्हणजे भाड्याचं पेमेंट केलं. वी आर डुईंग द पेमेंट ऑफ अ रेंट, भाडं दिलं, दुकानाचं वगैरे भाडं. यहाँ पे एक रेंट अकाउंट आएगा और रेंट आप कैसे देंगे? पेमेंट कैसे करते आप? कैश में करते हैं. तो अनादर अकाउंट, रेंट को अंडरलाइन करो, इसके सामने लिखो अनादर अकाउंट, कैश अकाउंट. करेक्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एस्पेक्ट्स. ओके, चलो वन बाय वन एस्पेक्ट देखते हैं. पहला एस्पेक्ट है, ओके, नंबर 1 में क्या एस्पेक्ट है? यहाँ पे ये टेबल आपके सामने रखता हूँ, देखो ये ऐसे इलस्ट्रेशंस और भी है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी प्रॉपरली. कमेंस बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस में कैश आ गया. तो एस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 1, तो दीज आर 1 2 3 4 5, या यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 दिया है. नंबर 1 में पहला एस्पेक्ट क्या है? कैश कम्स इन. एंड व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट? प्रोप्राइटर इज अ गिवर. प्रोप्राइटर इज अ गिवर, गिवर. देखो ऊपर, क्रेडिट द गिवर. इस तरह से बाद में आएगा, बाद में बोलते हैं उसके बारे में. नाउ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर. परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, तो ये नॉमिनल अकाउंट होने वाला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड अजय इज अ गिवर. अजय क्या होने वाला है? गिवर, क्योंकि हमने अजय के पास से माल लिया है. वी आर परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट बेसिस. तो परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर, अजय इज अ गिवर. ये एस्पेक्ट है. नंबर 3, कैश सेल्स. अगेन कैश कम्स इन, कैश आ गया. एंड सेल्स इज इनकम, सेल्स इज एन इनकम. देन रिसीव्ड कमीशन, अगेन कैश कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड इज इनकम. रेंट पेड, रेंट इज एक्सपेंसेस एंड कैश गोज आउट. आपने दिया ना अभी रेंट, तो कैश गोज आउट. सो इन दिस वे you need to understand the aspects of every transaction. And remember, as per double entry rule, every transaction has two aspects. Okay, twofold effect, two aspects. तो हमको वो find out करना पड़ता है. Okay, and the aspects, how to say the aspect according to these rules. What is the rule again for personal account? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आपको मेरे साथ बोलना है
मन ही मन में बोलो या जोर से बोलो घर में, आप कैसा भी कर सकते हो। देन रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, लाइक दिस। अभी दूसरा टेबल क्या है? टू अकाउंट्स कौन से हैं हमको तो पता चला, ओके, लेकिन लिखना ज़रूरी है। टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स, ओके। कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट हो गया, ये देखो ऊपर आपके सामने है ना, कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट हो गया। बिजनेस प्रोपराइटर इज अ गिवर, दैट इज बिकमिंग कैपिटल अकाउंट। मैंने पहले ही आपको यहाँ पे अकाउंट्स लिखने के लिए बोला था, बट नाउ हियर वी आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एस्पेक्ट, मतलब पहले हमने एस्पेक्ट फाइनलाइज किया, अभी टू अकाउंट्स फाइनल कर रहे हैं। परचेज इज अ एक्सपेंस, परचेज अकाउंट। अजय इज अ गिवर, अजय इज अकाउंट। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट। सेल्स इज एन इनकम, सेल्स अकाउंट। Then cash comes in, cash account. Commission is an income, commission account. Rent as expenses, rent account. Cash goes out, cash account. मतलब जैसे एस्पेक्ट है, मतलब पहला एस्पेक्ट है कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट आएगा। दूसरा एस्पेक्ट है प्रोपर्टी इज गिवर, कैपिटल अकाउंट आएगा। परचेस इज एक्सपेंडिचर, परचेस अकाउंट आएगा। अजय इज अ गिवर, अजय अकाउंट आएगा। लाइक दिस यू आर सपोज टू कंसिडर two aspects and two accounts. Now, अब देखो ये टेबल और आगे गया। टू aspects, टू अकाउंट्स एंड क्लासीफाई द अकाउंट्स। अभी हमको ये अकाउंट क्लासीफाई करने हैं। वापिस भाई, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन, विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट। अभी आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, ओके, ध्यान में रखना चाहिए कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है। नंबर वन में सेकंड पार्ट, प्रोप्राइटर दैट इज अ कैपिटल इज गिवर, कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं है आपको, यू कैन से ओनली पर्सनल अकाउंट। परचेज इज आर एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज दैट इज एक्सपेंसेस। अजय इज अ गिवर, अजय इज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। Cash comes in, cash account, real account. Sales is an income, sales account, nominal account. Why? Because sales is the income. Number 4, cash comes in, cash account, real account. अभी cash account हमेशा ध्यान में रखना है, real account है। Cash account, real account, purchase account, nominal account, sales account, nominal account, commission account, commission is an income. Okay, commission account, which account? Nominal. All expenses and losses, all incomes and gains are your nominal accounts. पर्सनल तो नाम से आएगा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट कैसे आएगा? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, मशीनरी, बिल्डिंग, ओके, कैश, लाइक दिस। नाउ रेंट एज एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट, nominal account. Cash goes out, cash account, real account. So this is given to you. Now this is activity 1. This is for you. आपको लिखना है, ओके। आप बुक आपके सामने है, यहाँ पे आप पेंसिल से लिख सकते हो। हम लोग 1 by 1 जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू राइट नाउ, ओके। लेट अस सी। टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स। क्लासीफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल्स, लाइक दिस। इतना सब करना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो एस्पेक्ट नंबर 1 में क्या आएगा? इसमें एस्पेक्ट नंबर 1 में क्या आएगा? कैश कम्स इन। एंड स्टार्टेड बिजनेस दैट इज कमेंस बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस में हमने पैसा डाल दिया। तो अनदर एस्पेक्ट इज नंबर 2 इज अ प्रोप्राइटर इज गिवर। राइट हियर पहले यहाँ पे आएगा कैश कम्स इन एंड हियर प्रोप्राइटर इज गिवर। बिझनेस मध्ये कॅश आली, पण देणारा कोण आहे बिझनेसला? प्रोप्रायटर. कुठेतरी दिले तर कॅश येईल ना. परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट है, अविनाश अकाउंट है, क्रेडिट के ऊपर है ना, तो एस्पेक्ट यहाँ पे आएगा सेकंड के लिए मशीनरी कम्स इन। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है ना, सो मशीनरी कम्स इन
And what about Avinash? He's a personal account. Now Avinash is giver. Avinash is giver. 3. Purchase goods 5,000 from Rahul on cash. Listen to me. Purchase goods of 5,000 from Rahul on cash. अब ये राहुल कौन है, हमको कुछ नहीं लेना देना, बिकॉज दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. यहाँ पे एक आएगा परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट. परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट. सोल्ड गुड्स सेल्स अकाउंट. हाँ, परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट. परचेज फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट. गुड्स के बारे में आपको परचेज किया तो परचेज लिखना है, सेल्स किया तो सेल्स लिखना है. अच्छा देखते हैं. सो परचेज गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश. सेकंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. राहुल नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, अब एस्पेक्ट में लिखते हैं यहाँ पे. परचेज इज एन एक्सपेंडिचर और परचेसेस आर एक्सपेंसेस. परचेसेस आर एक्सपेंसेस. और सेकंड में आएगा कैश गोज आउट. कैश गोज आउट क्योंकि आपने परचेस किया ना, माल परचेस किया है और पेमेंट कर दिया, तो कैश गोज आउट. थर्ड में वापस देखो, परचेज गुड्स, परचेज इज एक्सपेंसेस वाइल कैश गोज आउट. तो एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया, परचेज एक्सपेंसेस कैश गोज आउट. ये आपको खुद लिखना है. 4 नंबर में सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट. नाउ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, नॉट फॉर कैश. पहले आएगा सेल्स अकाउंट. सोल्ड अकाउंट नहीं आता, परचेसेस और सेल्स प्लूरल. ओके, सेल्स अकाउंट बोलो, सेल्स. एंड सेकंड इज अनिकेत अकाउंट. अनिकेत अकाउंट आएगा. व्हाई? बिकॉज दैट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट. तो नाम तो आना ही चाहिए. ओके, तो एस्पेक्ट नंबर 1 में आएगा अनिकेत इज रिसीवर. अनिकेत इज रिसीवर क्योंकि हमने गुड्स अनिकेत को सेल किया, तो अनिकेत क्या हो गया, रिसीवर. एंड यहाँ पे सेकेंड एस्पेक्ट में आएगा सेल्स इज इनकम. सेल्स इज आवर इनकम. यस, सेल्स इज आवर इनकम. नंबर 5 पेड सैलरी 1,000. तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट है, मतलब 2 कौन सा है, एक सैलरी, दूसरा कैश है. सैलरी दिया तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और उसके लिए क्या दिया आपने, कैश. कैश गोज आउट. तो 5 नंबर लिखो, सैलरी, सैलरीज आर एक्सपेंसेस. सैलरीज आर एक्सपेंसेस. और यहाँ पे लिखो एस्पेक्ट नंबर 2 में कैश गोज आउट. अगर आपको मेरा स्पीड ज़्यादा लग रहा है, यू कैन पॉज माई वीडियो, बट यू शुड राइट विथ मी. नंबर 6 सोल्ड ओल्ड टेबल्स. सोल्ड ओल्ड टेबल्स. अब आपको 2 अकाउंट आने वाले हैं, कैश एंड सेकंड इज अ फर्नीचर अकाउंट. कौन सा अकाउंट आएगा, फर्नीचर. टेबल मतलब क्या, टेबल. ओके, टेबल, चेयर्स, ओके, रैक्स, ऑल दीज आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर. टेबल अकाउंट नहीं लिखते. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू द एग्जाम्पल अबाउट दिस. 4 नंबर का देखो, सोल्ड गुड्स. तो मैंने क्या बोला था, सेल्स अकाउंट. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सोल्ड ओल्ड टेबल. तो मैं बोलूँगा फर्नीचर. आई विल नॉट से सेल्स अकाउंट नाउ, because these are not goods. Purchase goods, purchase account. Sold goods, sales account. But sold furniture, not a sales account, it is a furniture account, and another is a cash account. तो एस्पेक्ट नंबर 6 में पहले आएगा कैश कम्स इन. आपने टेबल सेल किया ना, तो आपको पैसा मिलेगा, कैश कम्स इन. और यहाँ पे लिखना है फर्नीचर गोज आउट. कैश आया तो फर्नीचर भी गया ना भाई. अभी 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स. ओके, 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट, इस तरह से हमको लिखना है. 2 एस्पेक्ट कौन से थे और 2 अकाउंट कौन से हमको तैयार करने हैं. ओके, ये टेबल थोड़ा सा इन्होंने बराबर नहीं बनाया. देखो, ये जो हमने बनाया था 2 एस्पेक्ट्स, ओके, एंड 2 अकाउंट्स, इस तरह से दिया इन्होंने.
तो दो एस्पेक्ट लिखते हैं, दो अकाउंट लिखते हैं, लेकिन आपको दो एस्पेक्ट यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। देखो, टू एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन तो बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे टेबल कैसे दिया था ना, ये थोड़ा बड़ा चाहिए था, ये थोड़ा बड़ा चाहिए था। अच्छा ठीक है, आप उसी में मैनेज करो। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको पहला एस्पेक्ट लिखना है, मतलब पहला सेंटेंस, यहीं पे दो स्टेटमेंट आएगा, राइट। कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, और हियर यू राइट कैश अकाउंट। और एक नंबर में ही नीचे लिखना है प्रोप्राइटर इन द ब्रैकेट कैपिटल इज गिवर, कैपिटल इज गिवर। तो सेकंड अकाउंट यहां पे आने वाला है कैपिटल अकाउंट। ओके, अगेन सी, कैश कम्स इन, तो यहां पे पहला अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। इसी कॉलम में नीचे आपको लिखना है प्रोप्राइटर दैट इज कैपिटल इज गिवर, तो थर्ड यहाँ पे ये कॉलम में आएगा कैपिटल अकाउंट। नंबर टू क्या था, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। ओके, तो यहाँ पे लिखो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी अकाउंट। सेकंड में ही लिखना है अविनाश इज गिवर, अविनाश इज गिवर, तो यहां पे आएगा अविनाश अकाउंट। अगर आपको ये नहीं समझा तो इस लेक्चर के बाद मैं इसका एक मतलब खुद लिख के आपको एक फोटो उसका व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। नंबर थ्री ट्रांजैक्शन क्या था, देखो, परचेज गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल फॉर ऑन कैश। ओके, so now here purchases account and cash account, so right here purchases expenses, 3 नंबर में पहला एस्पेक्ट है purchases expenses, यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट। 3 नंबर में ही दूसरा एस्पेक्ट आएगा कैश गोज आउट, तो ये कॉलम में आएगा कैश अकाउंट। नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट, तो 4 नंबर में पहला एस्पेक्ट आएगा अनिकेत इज रिसीवर, अनिकेत इज रिसीवर, अनिकेत अकाउंट। उसके नीचे लिखो 4 नंबर में सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, और यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट। दो एस्पेक्ट में आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 अकाउंट्स में आपको अलग अलग, मतलब पहले में कैश अकाउंट जैसे बाद में कैपिटल, ऐसा लिखना है। देन नेक्स्ट नंबर 5, पेड सैलरी 1,000, तो 2 एस्पेक्ट कौन से है नंबर 5 में, सैलरी इज एक्सपेंसेस, सैलरी इज एक्सपेंस, ऐसे लिया सैलरी इज एक्सपेंस, मग सैलरी अकाउंट पहला। कैश गोज आउट, यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। नंबर 6, सोल्ड ओल्ड टेबल 3,000 रुपीज, है ना। तो अभी नंबर 6 में 2 स्टेटमेंट लिखने हैं। पहला लिखो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, टेबल दिया तो कैश आ गया, तो कैश अकाउंट। सेकेंड एस्पेक्ट आएगा फर्नीचर सोल्ड, तो फर्नीचर अकाउंट आने वाला है। ओके, नाउ राइटिंग 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ओके, अभी यहाँ पे भी उन्होंने वैसे जगह बहुत कम दी है आपको, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ओके, चलो देखते हैं। पहला क्या था एस्पेक्ट, आपको याद होगा। ओके, आपने लिखा भी है यहाँ पे, है ना, वही लिखना है आपको।
ये जो पूरा पूरा आपने जो लिखा है ये यहाँ पे कॉपी करो, और 2 अकाउंट कौन से हैं वो भी आपको लिखना है, मतलब कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इस तरह से लिखना है। क्लासिफिकेशन कैसे लिखेंगे तो आपको वो ऑब्लिक करके लिखना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला, कैश कम्स इन, यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट, जगह छोड़ो एकदम, क्योंकि यहाँ पे जगह उन्होंने बहुत कम दी है। कैश अकाउंट, पहले क्या लिखा आपने, कैश कम्स इन कैश अकाउंट। दूसरा, प्रोप्राइटर कैपिटल गिवर, तो एक ऑब्लिक करके लिखो कैपिटल अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन में भी आपको ऐसे लिखना है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, मतलब पहले रियल, उसको ऑब्लिक करके पर्सनल, उसको ऑब्लिक करके ऑब्लिक ऑब्लिक मार्क करके पर्सनल। नंबर 2, नंबर 2 में क्या था, एस्पेक्ट आपने तो लिखा है परचेस मशीनरी, मशीनरी कम्स इन अविनाश इज गिवर, मशीनरी कम्स इन अविनाश इज गिवर। 2 अकाउंट आपको ऑब्लिक करके लिखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट ऑब्लिक अविनाश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ऑब्लिक अविनाश अकाउंट। उसका क्लासिफिकेशन जो है ओके, वो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट एंड अविनाश अकाउंट पर्सनल अकाउंट, ऑब्लिक करके लिखो। अब नंबर 3 में जाते हैं, परचेज गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल फॉर ऑन कैश, सो परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो हमने उसका एस्पेक्ट कैसे लिखा था, परचेसेस आर एक्सपेंसेस, सो परचेज अकाउंट, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट, ओके कैश अकाउंट। तीसरे टेबल में लिखना है आपको, और क्लासिफिकेशन कैसे आएगा, परचेसेस का है ये कॉलम में नॉमिनल अकाउंट, ऑब्लिक कैश का रियल अकाउंट। अब 4 नंबर देखो, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट। नाउ अनिकेत इज रिसीवर, 4 नंबर में आएगा अनिकेत इज रिसीवर, सो अनिकेत अकाउंट। सेल्स इज एन इनकम, ऑब्लिक करके सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, पर्सनल, अनिकेत अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट ऑब्लिक करके लिखना है नॉमिनल अकाउंट। नंबर 5, पेड सैलरी, so salary is expenses and cash goes out, वो ऑलरेडी अपने एस्पेक्ट में लिखा है, वही लिखना है यहाँ पे, सैलरी एक्सपेंसेस कैश गोज आउट। अकाउंट सैलरी अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट। क्लासिफिकेशन में लिखो पहले सैलरी नॉमिनल अकाउंट, ऑब्लिक कैश है रियल अकाउंट। एंड नंबर 6 नाउ, सोल्ड ओल्ड टेबल, तो एस्पेक्ट हमने इस तरह से लिखे थे, कैश कम्स इन एंड फर्नीचर गोज आउट। 2 अकाउंट आने वाले, कैश अकाउंट ऑब्लिक फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट को ऑब्लिक करके फर्नीचर अकाउंट। क्लासिफिकेशन में कैश अकाउंट का कौन सा अकाउंट है, रियल, ऑब्लिक करके उसको वो भी रियल, कैश इज रियल, फर्नीचर अकाउंट ऑल्सो रियल अकाउंट, फर्नीचर इज एसेट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्टिविटी, बट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, मुझे मालूम है आपको ये लेक्चर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होता जाता रहा है, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है ये मैं खुद लिखूंगा और आपको उसका एक फ़ोटो निकाल के अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में डाल दूंगा, या तो यहाँ पे ये एक मतलब एडिशनल लेक्चर में मैं ये डाल दूंगा।
Now, analysis of transaction by applying rules of debit and credit, traditional approach that we are going to discuss in our next lecture.